Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 7 of the chapter equality. Till now we have completed meaning of equality, right? Definition of equality. Along with that we have also discussed major dimensions of equality. In that we have discussed political, social and economic equality. And we have also understood how can we ensure equality, because complete equality that cannot be possible in any of the society, but we can ensure some type of steps. By using all those kind of measures we can establish at least that kind of thing that people are able to develop themselves according to their full potential. Getting my point? After that, because if the people are feeling that there are appropriate position or appropriate situation for their development, they will feel that yes, equality is existing in the society, and that is rational also, because complete equality, it's never possible and we cannot create it, right? So the topic that we are going to discuss today, that is feminism. Now what is feminism? Feminism is the ideology especially which is related to female women, and for what? For their equal rights. Because when we see around us, we are able to see we are having patriarchal mindset only. Society is depending, or society is existing on the principles of patriarchal mindset, and on the basis of that thing, what we are able to see, we are dividing society into two parts. We have considered male primary and female secondary, right? Because we were used to think that male are dominating because they are having control over economy. But feminism is that ideology especially which is focusing on the rights of females, that is demanding for the equal rights. If females are also the part of the society, then why should we consider them secondary, right? So what is feminism? What is the basic ideology of this particular mindset? What is of this particular doctrine? Let us have a look over it. Feminism. What is feminism? Feminism is a political doctrine of equal rights for women and men. अब देखो फेमिनिज्म क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप फीमेल्स को ज्यादा राइट दो, बल्कि क्या होना चाहिए, देयर शुड बी इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, राइट? बिकॉज एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, and if everyone is having equal contribution, then why should we consider one group superior and one inferior? That's not fair. Feminists are those men and women who believe that many of the inequalities we see in the society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered so that both women and men can lead free and equal lives. अब देखो, feminist जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ फीमेल मिलेंगी. A lot of people are there, after being male, they have supported this ideology. अगर आप जेस मिल का नेम पढ़ोगे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क किया रिगार्डिंग फेमिनिज्म. A lot of thinkers are there, after being male member and after living in the patriarchal mindset society, they have worked for the rights of female especially. अब देखो, फेमिनिस्ट कौन होते हैं? दे आर मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो, मैन ऑल्सो, वुमेन ऑल्सो. जो बेसिकली उनका बिलीव क्या होता है, इंपॉर्टेंट बिलीव उनका ये होता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी. वी आर एबल टू सी लॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, बट फेमिनिस्ट थिंकर दे बिलीव दैट देयर शुड बी इक्वालिटी. क्योंकि जो जिस इनइक्वालिटी की आप बात करते हो, दैट इज नॉट नेचुरल ना. अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस, बट इवन देन ऑन द बेसिस ऑफ rest of the things we all are having similar things, right? So, and because if the nature has made us, then why should we make these kind of differences and inequality? That's not fair, right? तो ऐसी inequality जो ना तो natural है और ना ही necessary है, जरूरी भी नहीं है. Because in today's time you are able to see ना, women are working each and every work that used to be considered that it can be done by male only. आज तो इवन जो फाइटर जेट्स होते हैं वो भी फीमेल्स क्या कर फ्लाई कर रहे हैं. सो वी आर एबल टू सी कि ऐसी जो आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ये नेचुरल नहीं है. हमने क्या कर दिया, इसको खुद बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, एक ऐसा माइंडसेट बना दिया कि नहीं, फीमेल्स आर वीक, इसीलिए वो क्या है, दे आर सेकेंडरी.
बट इट्स नॉट नेसेसरी ना। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बोथ शुड बी इक्वल, दे शुड लीड फ्री एंड दे शुड हैव द राइट टू लिव देयर लाइव्स इन अ फ्री मैनर, राइट? अगर ऐसा हम लोग ऐसी लाइफ दे पाते तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, बोथ ऑफ दे विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। समझ आया? फाइन। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ पेट्रियार्की। अब देखो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है, राइट? अब देखो टू सोसाइटीज होती हैं, वन इज पेट्रियार्कल, सेकेंड इज मेट्रियार्कल। अब देखो पेट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली क्या होती है, जो सोसाइटी, जो आइडियोलॉजी ये मान के चलती है कि फादर की प्रॉपर्टी और उसके सारे रिसोर्सेज पर सन का राइट होता है, जो ये मान के चलती है कि मेल इज डोमिनेटिंग, मेल इज स्ट्रॉन्ग, मेल इज सुपीरियर, फीमेल्स आर इंफीरियर। वो माइंडसेट है आपका कौन सा? पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो बेसिकली जो फेमिनिस्ट थिंकर है वो क्या बोलते हैं कि जो ये आपको सोसाइटी में डिफरेंसेस और ये डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो किस चीज का रिजल्ट है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ पेट्रियार्की ओनली। समझ आया? एंड मेट्रियार्कल माइंडसेट क्या होता है? मेट्रियार्कल जहां पर आप कुछ ना हमारी कम्युनिटीज देखते हो जहां पर ना मदर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, राइट? एंड द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू डॉटर फ्रॉम मदर, दैट इज ऑपोजिट कंप्लीट फ्रॉम पेट्रियार्की। ठीक है? दिस टर्म रेफर्स टू अ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर देन द वुमेन एंड गिव मैन मोर पावर देन वुमेन। अब बेसिकली देखो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पेट्रियार्की माइंडसेट है, वो क्या है? ऐसी सोशल, इकोनॉमिक या फिर कल्चरल सिस्टम जिसमें मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल, उसको ज्यादा पावर प्रोवाइड की जाती है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल, दैट इज पेट्रियार्कल, right? Patriarchy is based on the assumption that man and women are different by nature and that these differences justifies their unequal position in society. देखो patriarchal क्या मानते हैं? Because they are considering male are primary, females are secondary, right? इसलिए उन्होंने क्या माना, उनका assumption किस बेस पर होता है कि ना नेचर ने ही हम लोगों को डिफरेंट बनाया है एंड अकॉर्डिंग टू नेचर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नेचर ये जस्टिफाइड है कि अनइक्वल पोजीशन होगी। अब देखो आप लोगों को अपनी फैमिली में ना ये एग्जांपल्स बड़े अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। इफ यू आर यू कैन से इफ यू आर अ बॉय देन यू विल बी एबल टू सी पेरेंट्स कैन से कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है ना? इट मींस व्हाट इज कंसीडर्ड दैट क्राइंग इज द वर्क ऑफ गर्ल्स एंड फीमेल्स ओनली बिकॉज दे आर वीक, राइट? दैट इज डन इन आवर सोसाइटी। इफ द गर्ल इज देयर तो पेरेंट्स उसको क्या बोलेंगे? दे शुड नॉट स्पीक इन लाउड वॉइस, है ना? दे शुड बी काम, राइट? उनको शांत होना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, राइट? ऑल द थिंग्स आर देयर ना। वाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैम कि उनकी जो पोजीशन है ना वो क्या है? डिफरेंट है। और वो डिफरेंट पोजीशन क्या दिखा रही है? वो जस्टिफाई करती है क्योंकि हम बाय नेचर वी आर डिफरेंट। पेट्रियार्कल माइंडसेट यही हमें यकीन दिलाता है। अब देखो फेमिनिस्ट क्वेश्चंस दिस वे ऑफ थिंकिंग बाय मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स, दैट इज बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, एंड जेंडर व्हिच डिटरमाइंस द डिफरेंट रोल दैट मैन एंड वुमेन प्ले इन सोसाइटी। अब देखो दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ऑल्दो बायोलॉजिकली वी कैन बी सेपरेट, राइट? हम अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, मेल एंड फीमेल कैन बी सेपरेट। बट जेंडर क्या बताता है? जेंडर वो दिखाता है कि आपका रोल क्या है सोसाइटी में, जो मैन और वुमेन होने के नाते रोल जो प्ले करना है, दैट इज शोन बाय द जेंडर। समझ आया? फॉर इंस्टेंस द बायोलॉजिकल फैक्ट that only women can become pregnant and bear children does not require that only women should look after the children after they are born. अब फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं? अब देखो कुछ स्पेशल क्वालिटीज फीमेल्स के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे आर एबल टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, है ना? तो ऐसे में जो फेमिनिस्ट थिंकर है ना वो क्या बोलते हैं? दैट इफ इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल दैट शी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, इट्स नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन देन it's not her responsibility that she will be looking after the children only, right? The thinkers of especially this ideology, feminist ideology, they are saying that
right? Feminists show us that much of the inequality between men and women is produced by society and not by nature. और ये feminist thinker क्या बोलते हैं? feminist thinker हमेशा यही बोलते हैं क्या कि जो सोसाइटी में हम लोगों ने क्या बनाया है, हम लोगों ने क्या बनाया कि ये जो बाई जो चीजें आप लोग देख पा रहे हो ना, ये इनइक्वालिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है? ये नेचर ने नहीं बनाई बल्कि हमने सोसाइटी में बना दी. अब देखो जैसे आप कास्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हो, क्या भगवान ने हमको कास्ट बेस पे डिफरेंट बनाया है? गॉड हैज गिवन बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, बट जो डिवीजन है वो तो हम लोगों ने सोसाइटी के बेसिस पे कर दिया ना. दिस इज सुपीरियर, दिस इज इन्फीरियर, ये कास्ट सबसे सुपीरियर होगी, ये लोअर कैटेगरी पीपल होंगे, ये शेड्यूल्ड कास्ट होंगी, राइट? इन द सिमिलर मैनर फेमिनिस्ट थिंकर क्या बोलते हैं कि जो डिवीजन है ना, दैट इज डन बाय अस ओनली. नेचर ने वो नहीं किया है, समझ आया? वो सोसाइटी ने किया है. Patriarchy produces a division of labor by which women are supposed to be responsible for private and domestic matters. अब देखो patriarchal mindset क्या है. अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने क्या बता दिया कि डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नो, बल्कि पेट्रियार्की क्या बात करती है कि लेबर का भी वर्क डिवीजन कर दिया, मतलब लेबर भी डिवाइड कर दिया, वर्क ऑल्सो दे हैव डिवाइडेड. अब वर्क कैसे डिवाइड कर दिया? आप लोगों ने भी सुना होगा, फीमेल्स है तो दे विल बी वर्किंग एट द होम, मेल है तो उनकी ड्यूटी क्या है? टू गो आउटसाइड फ्रॉम द हाउस एंड अर्न समथिंग. वो क्या है? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल मेंबर, राइट? अब देखो ये क्या कर दिया, दिस इज ऑल्सो द माइंड सेट ना, वाई द फीमेल्स आर नॉट एबल टू अर्न एंड इन टूडेज टाइम दे आर वर्किंग, ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग ऑल्सो, right? Even then what happens if the female is earning, even then it is expected by the society कि domestic chores वही करेगी, घर के काम वही करेगी, whether she is earning or not, right? तो basically patriarchal जो mindset है उसने क्या कर दिया, that has done division of labor as well. और उसने क्या बता दिया कि जो females है ना उनको क्या करना है, they are responsible for private and domestic matters. मतलब प्राइवेट जो सिर्फ आपकी फैमिली से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल शी विल बी लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन ओनली, शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड पेरेंट्स, राइट? और वो क्या करेगी, शी विल बी डूइंग डोमेस्टिक वर्क्स ओनली, जैसे खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, ये सारे वर्क वही करेगी, ठीक है? दैट इज लिमिटेड टू डोमेस्टिक वर्क ओनली. और क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट में क्या माना गया कि मेल स्ट्रॉन्ग है, राइट? जो मैन क्या करेंगे, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क इन द पब्लिक डोमेन, क्योंकि क्या माना गया कि वो स्ट्रॉन्ग है, दे कैन फेस द सोसाइटी, इसलिए वो क्या करेंगे, दे आर एबल टू वर्क इन द पब्लिक डोमेन, मतलब वो बाहर जाएंगे, अर्न करके लेके आएंगे फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए. समझा? लेकिन फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट क्वेश्चन दिस डिस्टिंक्शन बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन फैक्ट मोस्ट वुमेन आर आल्सो एक्टिव इन पब्लिक डोमेन. लेकिन फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि दिस डिवीजन इज रॉन्ग ना. व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ फीमेल्स आर देयर जो पब्लिक डोमेन में वर्क करते हैं, इवन इन द कंपैरिजन ऑफ मेल दे आर वर्किंग बेटर. अब देखो अगर आप अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हो ना, इफ यू आर एबल टू सी, जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, हमारी कंट्री का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, दैट वाज डन इन द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, है ना? एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, एंड द वर्क व्हिच वाज नॉट डन बाय मेल प्राइम मिनिस्टर, शी हैज डन इट 1974, जब हमने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था हमारी कंट्री में, ठीक है? तो इट मींस दे आर वर्किंग. इवन देन वी आर हैविंग अ सस्पेंशन ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड कैलिबर, ठीक है? दैट इज मोस्ट women all over the world are employed in some form of work outside the home, but women continue to be solely responsible for the housework as well. लेकिन फीमेल को क्या सोचा जाता है, फीमेल्स को सोचा जाता है कि वो क्या करें, दे विल बी वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, दे विल नॉट बी वर्किंग आउटसाइड द होम, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेस्टिक चोर्स ओनली, राइट? हाउएवर डिस्पाइट दिस डबल बर्डन, अब देखो फिर भी एज आई टोल्ड यू, अब देखो क्या है कि अगर विमेन एम्प्लॉयड है ना अदर देन देयर डोमेस्टिक चोर्स, विमेन कंटिन्यू टू बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस वर्क एज वेल. अगर वो अर्न बाहर भी करके आ रही हैं तो इट इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर आके खाना वही बनाएंगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? आप लोगों ने वो लाइन कभी सुनी होगी कि स्त्रियां काम से लौटकर भी काम पर लौटती हैं, मतलब इफ दे आर वर्किंग आउटसाइड ऑल्सो, इवन व्हेन दे आर कमिंग बैक इन देयर होम्स अगेन दे विल हैव टू डू द वर्क ओनली. इट मीन्स ये कौन सा माइंड सेट है कि दे आर, इफ दे आर अर्निंग ऑल्सो, इवन देन इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द होम, राइट? अब क्या है, अब ये क्या हो गया, इट इज द डबल बर्डन ना. पहले चलो क्या बात था,
पहले तो ये चीज थी कि चलो मेल बाहर वर्क कर रहे हैं, फीमेल्स आर वर्किंग डोमेस्टिक चोर्स, लेकिन अब तो क्या हो रहा है, अब फीमेल्स को समझ नहीं आ रहा इफ दे हैव गॉट इंडिपेंडेंस, और या फिर उन्होंने खुद को ज्यादा बाउंड कर लिया because they are working outside from the houses also and they are working in the house also, so that is creating double burden over them, right? As feminists term it, women are given little or no say in decision taken in the public domain. लेकिन इतना होने के बाद भी उनको क्या किया जा रहा है, they are not able to take the decisions, right? Feminists contend that this public private distinction and all form of gender inequality can and should be eliminated. और जो feminist है वो यही बोलते हैं, these are not required, these inequalities are not justified, and that's why these should be eliminated from the society. And if we will be able to eliminate it, only then we will be able to use their power and potential ना. अब फीमेल्स को हम क्या मान के चल पड़ते हैं कि नहीं, दे आर सेकंड जेंडर, दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज, तो उनके आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट गिव देम इंपॉर्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी इफ यू वांट टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैलिबर. समझ आ? दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म. आई होप इट्स कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब अगर फेमिनिज्म पर क्वेश्चन आता है, राइट आर नॉट ऑन फेमिनिज्म, राइट? व्हाट आर द मेजर डिमांड्स ऑफ फेमिनिज्म, व्हाई इट इज वर्किंग, राइट? व्हाई शुड वी अडॉप्ट फेमिनिज्म? आई थिंक यू विल बी एबल टू फ्रेम द आंसर. सो नाउ इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव स्टडीड कि जो स्पेशली हमारी इक्वालिटी एस्पेक्ट है, कंटेक्स्ट है, उसमें ना दो तीन आइडियोलॉजी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, राइट? तो अब हम उन्हीं आइडियोलॉजीज, उन्हीं थियोरीज को रीड करने वाले हैं. कौन कौन सी? देखो, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म. अब ये है क्या, एंड हाउ दीज आइडियोलॉजीज आर वर्किंग फॉर द इक्वालिटी. कैसे ये क्या कर रही है, डिमांड कर रही है, कैसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं. सो लेट अस हैव अ लुक. मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म are two important political ideology of our times. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज हैं. अब देखो, मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है, जो सोसाइटी को हमेशा मान के चलता है कि सोसाइटी में ना हमेशा डिवीजन होता है. कैसे? हैव्स और हैव्स नॉट. हमेशा ऐसे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो क्या है, एक जिसके पास रिसोर्सेज हैं एंड सेकंड जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं. ठीक है. लिबरलिज्म कैसी आइडियोलॉजी है? लिबरलिज्म वो आइडियोलॉजी है जो चाहता है कि स्टेट वो अच्छा है जो कम से कम रूल करे. दैट स्टेट इज बेस्ट विच रूल्स द लिस्ट. जो सबसे कम रूल करता ना वो स्टेट बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि जो स्टेट बहुत ज्यादा रूल करेगा वो स्टेट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगा, और जितनी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होंगी तो लोगों के कैलिबर को आप उतना ही सप्रेस कर रहे हो. तो लिबरलिज्म बेसिकली कौन सी आइडियोलॉजी है? जो लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देने की बात करता है, विच इज एग्जिस्टिंग स्पेशली इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, राइट? अब देखो, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म आर टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ आवर टाइम. Marx was an important 19th century thinker who argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of important economic resources such as oil or land or forest, as well as other forms of property. अब देखो, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है? मार्क्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो जड़ है ना प्रॉब्लम्स की, वो क्या है? वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी. बेसिकली क्या होता है, जो फॉर्म ऑफ देखो, प्राइवेट ओनरशिप कैसे होती है? प्राइवेट ओनरशिप में आप लोग क्या करने की कोशिश करते हो? यू विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट, राइट? जिसमें आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करके खुद के लिए ज्यादा एडवांटेजेस गेन करने की कोशिश करते हो. दैट इज आइडियोलॉजी ना. हम यही करने की कोशिश करते हैं. और वो कैसे हो सकता है? जैसे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, लैंड है, फॉरेस्ट है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू दैट, हम हमेशा प्राइवेट ओनरशिप गेन करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये जो प्राइवेट ओनरशिप है ना, इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि ऐसे में हम अपने बेनिफिट्स के लिए ना हमेशा दूसरों को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं. He pointed out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it also gave them political power. लेकिन ये सिस्टम क्या है बेसिकली? अगर हम लोग देखते कि इकोनॉमिक, अगर मान लिया कुछ एक प्राइवेट ओनरशिप है, तो प्राइवेट ओनरशिप क्या करता है? इट विल बी एबल टू क्रिएट द कंट्रोल ऑफ वेल्दी पीपल ओनली. दूसरे लोगों का कंट्रोल होगा ही नहीं.
राइट। अब देखो आप लोग क्या देख रहे हो, आज भी हमारी, अगर आप अपनी कंट्री को भी अगर एनालाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू फील हमारी कंट्री की इकोनॉमी 2-3 लोगों के अराउंड रिवॉल्व होती है, राइट। क्योंकि ये उनको क्या प्रोवाइड करवा रही, पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड करवा रही है, बिकॉज दे आर वेल्दी, दे आर हैविंग रिसोर्सेज, राइट। सच पावर enables them to influence state policies and laws and this could prove a threat to democratic government। और जब आप ऐसा देखते हो ना कि कुछ एक ग्रुप होते हैं, कुछ एक पीपल होते हैं जिनका कंट्रोल होता है, सो व्हाट यू आर एबल टू सी, वो हमेशा कंट्री की सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ना कंट्रोल करते हैं। और ऐसा जब कुछ एक पर्सन का कंट्रोल होता है तो ऑफ कोर्स दैट इज प्रॉब्लमेटिक, इट विल, बिकॉज देखो डेमोक्रेसी में मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ कॉमन पीपल ना। लेकिन जब आपने बोल दिया कि कुछ एक लोगों का रूल है तो ऑफ कोर्स ये डेमोक्रेसी तो नहीं होगी, इट कैन बी डिक्टेटरशिप, अ टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, राइट। तो अगर ऐसा कहीं पर ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज प्रॉब्लमेटिक एंड इट इज द बिगेस्ट थ्रेट इन फ्रंट ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट। Marxist and socialist feel that economic inequality provides support to other form of social inequality, such as differences of rank of privilege। अब देखो ये क्या फील करते हैं कि जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी ना सोसाइटी में, ये अपने आप दूसरी सारी डिफरेंसेस को जनरेट कर देगी। अब देखो जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई, अब जो लोग क्या होंगे, लेडर में बॉटम पे होंगे ना, उस इक्वालिटी वाली लेडर पे मान लिया बॉटम पे हैं, तो ऑफ कोर्स उन लोगों को इंफीरियर वे से ट्रीट किया जाएगा, उनको इक्वल मैनर में ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अब क्या होगा, अगर वो इक्वल मैनर में ट्रीट नहीं है, अगर वो इकोनॉमिकली भी साउंड नहीं है, तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, गुड हेल्थ फैसिलिटी टू देयर चिल्ड्रन, एंड व्हाट विल हैपन, अब प्रॉब्लम होंगी सोसाइटी में। क्यों प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि अब इसके बाद सोसाइटी कैसे स्टैब्लिश होगी, अब सोसाइटी होगी जिसमें डिफरेंसेस होंगे, राइट। और वो पॉवर्टी का साइकिल ऐसे ही गोइंग ऑन रहता है। सो दिस इज द थिंग ना। अब देखो क्या है, अगर एक बार सोसाइटी में डिफरेंसेस हो गए ना तो वो फिर क्या होंगे, दे विल बी गोइंग ऑन। और इसीलिए जो प्राइवेट ओनरशिप है वो डेंजरस होगी, क्योंकि हमेशा सोसाइटी में जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई तो बहुत सारी इनइक्वालिटी उसी के साथ कनेक्टेड होती हैं। Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and forms of property. Such views may be debatable, but they have raised important issue which need to be addressed. अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है कि सिस्टम ही गलत है। जब आप प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हो ना, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। एंड व्हाई इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, because it will be establishing the control of few people only over the resources। और जब कुछ एक लोगों का कंट्रोल होगा तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी डेंजर में चली जाएगी। इसीलिए स्पेशली आइडियोलॉजी, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो क्या बात करती है कि जो रिसोर्सेज है ना हमारे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, असेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर सभी का कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप, कुछ एक स्पेशल पर्सन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। हालांकि ये जो इश्यूज है ये डिबेटेबल इशू है, क्योंकि अगर मान लिया सबका कंट्रोल होगा तो फिर कोई भी डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स लगाएगा ही नहीं। मान लो आप सभी सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया जाए कि ना आप सभी को 80 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ना कोई भी नहीं पढ़ेगा, ना इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ेगा ना वीक बच्चा पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट को पता है 80 से अबव नहीं मिलने, और जो कम पढ़ने वाला बच्चा उसको पता है कि 80 से कम नहीं मिलने, तो नो वन विल बी स्टडिंग। इन द सिमिलर मैनर, अगर सोसाइटी में सबको पता है कि हमारी बेसिक नीड्स तो फुल कौन करेगा, स्टेट करेगा, तो नो वन विल बी मेकिंग एफर्ट्स टू गेट सम एक्स्ट्रा, राइट। एंड दिस विल बी लीडिंग टू द प्रॉब्लम्स ओनली। क्योंकि अब देखो सोसाइटी डेवलप क्यों कर रही है, बिकॉज द पीपल आर डेवलपिंग, दे वांट टू गेट समथिंग मोर फ्रॉम अदर्स, और यही बात उनको क्या करती है, एनकरेज करती टू डू सम मोर हार्ड वर्क। इसलिए अगर ऑल्दो देखो कुछ चीजें होती है जो प्राइवेट ऑनरशिप और इंडिविजुअल जिनके ऊपर गवर्नमेंट की ऑनरशिप, दैट कैन बी बेटर, लेकिन द इकोनॉमी मॉडल विच आर कंट्री इज हैविंग ना, वो बेस्ट है कि मिक्स्ड, कुछ रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कर दो, कुछ को प्राइवेट ओपन छोड़ दो, सो दैट क्या हो सके, ना तो ऐसा हो कि कुछ लोग पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लें, और ना ऐसा हो कि हम उन लोगों के मतलब माइंडसेट को ही खत्म कर दें जो कंपटीशन के थ्रू कुछ गेन करना चाह रहे हैं।
कुछ डेवलपमेंट करना चाह रही सोसाइटी का. So we will have to make a balance. And these are the issues which should be addressed properly for the just society. I hope Marxist ideology आपको clear है. Fine. But what is liberal ideology, liberal theory, that we will discuss in next video. In today's class, what we have discussed two ideologies, especially feminism and then Marxist. I hope these two theories, these two ideologies are clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the liberal ideology. Till then, keep learning. And the most important thing, if you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, stay connected and revise everything. Thank you. Thanks a lot.